गुजरता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Leah ji. Welcome to this session. And today is Monday. So anybody would like to share something? किसी को कुछ पूछना? Any questions or any sharing? So we can take before we start the session. So I had a major magic. So Major magic. I had this. So I had this ring. It was the first solitaire ring that my father had gifted me. Okay, and I had misplaced. Stop in one place. Stop in one place because your video is on. No, just yeah. Sorry, Yeah. So I had misplaced it, and since 1.5 to 2 years, जब भी मैं मैजिक बुक करती हूँ हर महीना वो टू डू लिस्ट में मैं हमेशा उसका लिखती थी. Now my father was so frustrated. My father was saying, "तू एक और हीरा पड़ा है उसकी अंगूठी बना ले." ऐसा नहीं, मैं पहनूंगी तो वो ही पहनूंगी, ठीक है? And I used to like literally imagine it on my ring, and I would imagine, and it was a sharp edge, so I would imagine getting scratched by it or something like that. And yesterday, randomly, I was taking out some jewelry. वो उस डब्बी में कितनी बार ढूंढा है हम लोग ने, और randomly सर कल मिली हम लोग को. Randomly कल मिल गई. Wonderful. Amazing. So this is about your faith, कि मैं वो ही पहनूंगी मैं. Are you getting this? अब मेरी एक अंगूठी घूमी है, I think 1.5-2 साल हो गया है, पर मुझे अभी भी विश्वास है कि वो मुझे मिलने वाली है. Yes, I don't sir. know. I mean, it was a gift. Somebody had given me a very big stone. तो पास का आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर. And I mean, it is lost for last about 2 years now. But I have a faith कि वो पक्का मिलेगी मुझे. Sir, this is your cue. If I have got it, then you will get it. Cue the magic. Thank you so much. Thank you. Yeah, wonderful. Okay. So this is how magics are happening in our lives of participants. So आपकी भी कोई, if you have any sharings या कोई आपका question हो, तो you may please ask before we start the session. Okay. Anybody else? Sir, I like to share something. हाँ बोलो Anish. Yeah, today in the stock market now, sir, I have a certain stock which were not moving for last 2 years. And I was not able to sell it off. Today, I happily sold it off in the loss. And I just prayed that no problem. Now reinvesting in the new journey, what you have suggested. So earlier I was not able to sell the stocks, because of the losses. Now today, when the losses is happening up, I'm just saying thank you to my losses. No problem. I will cover it very fast. So I have a very lot of burden, not to sell the stock in losses. Because of you, because of your attitude, I said no problem. I will make double of it. Thank you for this thing, sir. Thank you so much. So now let me share with you. सदानंद आप अपना म्यूट रखें प्लीज, बिकॉज हम कुछ बातें कर रहे हैं, राइट? So there is one nice book which I have started reading, Mindset Secrets for Winning. Mindset Secrets for Winning by Mark Minervini. Amazing book है. वो ये कहता है जो मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, और उसके बाद में टेक्निकल फंडामेंटल बाद में आता है. जब तक माइंडसेट नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. आप डरते रहोगे, you will start worrying for wrong things. आपके हाथ में अच्छा स्टॉक आ भी जाएगा, you might lose that stock. And this was what was happening with me all throughout my journey of last 38 years. अब 5-6 महीने से जाके मेरा अभी स्टेबलाइज हुआ हूं मैं by my mindset. And gratitude plays a very, very important role in making your mindset. उसके लिए हम gratitude, affirmations, ये दो चीज जो हैं, it is like your left hand, right hand.
अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो हमें किसी ने सिखाई नहीं, किसी ने समझा ही नहीं कि जब तक आपका माइंडसेट नहीं रहेगा आपको सक्सेस, हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अनिश। सो दिस इज द वे यू डू ग्रैटिट्यूड फॉर योर स्टॉक्स, और थोड़े आराम से, एंड यू एक्सेप्ट इट। थैंक यू। यस सदानंद, so somebody had a question also, somebody had typed, please unmute yourself. Had a question. Yeah, Harsha. Yeah. So in the workbook, sir, on the top it's written that when you are writing your things, you are supposed to be writing it with I want. Are we supposed to be writing everything with I want this thing in my life? Okay, so now ये 2-3 स्टेप का है। जो आपको चाहिए वो कैसे मांगना, तो पहले जो पहली बार होता है लोगों को नहीं समझ में आता है, इसके लिए हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम यू राइट आई वांट, ठीक है ना? Okay. पर इफ यू आर एन एक्सपर्ट, क्योंकि आपने 1-2 बार लिख लिया है, नाउ सिंस यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन में हम आई वांट नहीं लिखते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, पहले लोगों को पहले आई वांट लिखाते हैं व्हेन यू आर न्यू टू दिस जर्नी, और जैसे जैसे आपको समझ में आता है फिर हम आपको समझाते हैं कि अब आई वांट मत लिखो। आई वांट का मतलब होता है फ्यूचर हो जाता है। पर इफ यू राइट आई एम ओनिंग अ मर्सिडीज, रेड कलर मर्सिडीज कार, नाउ द फीलिंग इज डिफरेंट। Yes. So we write in present tense ke already I have got it. Okay. Correct? I got it. So Yeah. normally so whatever is your dream, so like I am traveling to Japan, I am traveling to US, on my holiday or whatever you want. So you write in present tense always. Okay. One more question. Present tense में see the creative process of manifestation क्या होता है? पहला होता है ask, believe And receive. Okay, now this is for everyone. Ask, believe, receive. अब होता क्या है, ask तो आपने कर दिया, आपने ask कर दिया, करेक्ट? अब जो है believe करना है आपको कि you already have it. You already have what you are asking for. Simple. वो आपको believe करना है। Believe कैसे करोगे? By your affirmation. You keep on saying to yourself, मैं तो बहुत पैसा हूं, मनी इज कमिंग टू मी। फॉर एग्जाम्पल आपका मनी एरिया है, तो यू स्टार्ट डूइंग योर अफर्मेशन, यू स्टार्ट डूइंग योर ग्रेटिट्यूड, एंड द लास्ट पार्ट इज रिसीव। आस्क, बिलीव, रिसीव। रिसीव का मतलब है इट इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। आपको वो फीलिंग्स आनी चाहिए कि आपको जो चाहिए वो मिल गया है। सिंपल है। आर यू गेटिंग दिस? Yes. Okay, so this is One more question I had. So don't write I want. Okay. Yes. I'll stop. And one more question I had, sir. So Yes. when you ask for, like, when you are writing your dreams, like once you write down a dream, what is the process after it? Like the ask, believe, receive is the thing, but are you supposed to be constantly thinking about it or visualizing your dream or something Yes. like that, or you just write it and leave it? Okay, इसमें ऐसा है कि देखिए, आपने उसको एक डोमिनेंट थॉट बनाना है। व्हाटएवर जो भी आपका सपना है उसको डोमिनेंट थॉट बनाना है, बट डोमिनेंट थॉट ऐसा होना चाहिए कि मुझे पक्का मिलने वाला है, मतलब कोई डाउट नहीं है। इट इज लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कुछ चीज अमेजोन पे ऑर्डर की, तो अब आपको डाउट है क्या कुछ कि नहीं आएगा, कब आएगा, अरे 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आएगा। दैट फीलिंग यू शुड हैव while manifesting, and you can always make it a dominant thought. Make it a dominant thought because you attract your dominant thought. अब अभी तक आपको अगर क्लैरिटी नहीं आई है तो मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा फाइनल लाइंस है बिटवीन में। अपने आपके जो सपने हैं उसके बारे में सोचते रहना है, एंड यू हैव टू फील हैप्पी अबाउट इट। वाओ क्या मजा आ रहा है। विजुअलाइजेशंस करना है, वाओ क्या मजा आ रहा है, आई एम सो हैप्पी, मैंने घर में पार्टी रखी है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज तो बहुत मजा आ रहा है। जैसे मेरी अभी बुक लॉन्च होने वाली है, हाउ आई मेड ₹100 करोड़ इन स्टॉक्स, अब मैंने उसका विजुअलाइजेशन शुरू किया है। आर यू गेटिंग दिस? अब मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू इज अबाउट 26 करोड़, मैं अभी से बता रहा हूं। मैं जो घट के
February 2022 में it was around 13 crores. So now today it is worth about 26-28 crores. But I am writing a book. क्या लिख रहा हूं मैं? How I made ₹100 crore in stocks. उसका कवर पेज भी बना दिया है. और आज तो मैंने रश्मि को बोल के बोला लिखो उसमें coming soon, book your copy now. Too creative, sir. I mean, I have to do it like this. मतलब मेरा पक्का है वो बुक तो आना. जिन जिन लोगों को बुक करानी है वो बुक कर लो पहले से बुक. We'll book it now only, sir. We would definitely want to read it. Sir, which bit are you joined late? Okay. So are you सर getting? आपके साथ में जर्नी में हम भी 10-10 करोड़ वाले हो जाएंगे. अरे पक्का सबको चलना है मेरे साथ ही हो चलना है. जाएंगे, मैं हमारा तो भी 10 क्लास में करोड़ बैठना का नहीं. होगा, Sir, at least mention our names in the book. Okay, Sadanand. Yes, sir. Hello, everyone. Good evening. Sir, last Wednesday क्या हुआ कि मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया और मैं नेगेटिव हाँ बात मैं है. एकदम Yes, शॉर्ट last मैं स्कूटी से गिर गया और गिर गया. मुझे काफी चोट लगी. लेफ्ट लेग मेरा पूरा इंजर्ड हो गया और अरे शॉर्ट में बताएं. अभी भी बता रहा हूँ मैं उनका आपको. सदानंद. बस मैंने उस प्लेस को मैंने बहुत ही धन्यवाद दिया सर. 3 बार बोला शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. और मैं मॉर्निंग में सर मैं बहुत ही मतलब दर्द को एकदम मैं महसूस नहीं कर रहा था. मॉर्निंग में मैंने बॉस को भी कॉल किया तो बॉस ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो, छुट्टी ले लो. और एडमिन एचआर का बंदे ने बोला कि आप चप्पल पहन करके आराम से ऑफिस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं सैल्यूट करता हूँ सर उस जगह को जिसको मैंने बहुत थैंक यू बोला सर. और आज अभी मैं ऑफिस बहुत बढ़िया से जा रहा हूँ. भले मुझे कुछ हुआ है, मुझे एकदम मैं चंगा हूँ. बस भगवान का नाम लिया और बोला कि तू भगवान का बंदा है. मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ सर. ये ग्रेटिट्यूड का ही असर है सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. देखिए यस्टरडे मधु अग्रवाल ने शेयरिंग किया था, जो सऊदी अरेबिया में रहती है. वो अकेली थी, उनके हस्बैंड इंडिया आए हुए थे और उनको रात को 2 बजे सर में लग गया था. बहुत खून निकला एंड व्हाटएवर. उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उनकी मदद की. जब उनको स्टिचेस लिया गया, नेक्स्ट डे जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि ये स्टिचेस ड्राई कैसे हो गए एक दिन में. The reason was मधु अग्रवाल constantly gratitude कर रही थी. Constantly she was in gratitude. Are you getting this? Gratitude इतना powerful है. कोई हमारा participants कल ही बता रहा था ना कि दांत के डॉक्टर के पास गया और उन्होंने gratitude शुरू कर दिया, कुछ नहीं हुआ उसको. Now this is the power. See what happens is you cannot control your mind. You can only divert your mind. अब हम जो हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर करके इतने मास्टर हो गए हैं कि हम हमारे माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं ऐसे, लाइक दिस. ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है. रिमेंबर दिस. ओके, सो समबडी एल्स. यस प्रिया नायर. हाँ जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मैं पूना के पास दौड़ में रहती हूँ सर. मैं ऐश्वर्य मैम के पूरा क्लास कर रही हूँ और मैम जब जिसने क्वेरी किया है अगेन एंड अगेन कि हम हमारे हस्बैंड के लिए क्या करें, उन्हें कुछ ब्लेसिंग है तो डॉटर के लिए क्या करें, तो मैम हमेशा कहती खुद पे काम कीजिए. लेकिन सर मैं जैसे अभी आपकी सक्सेस से सुन रही हूँ आपकी स्टोरीज, तो मुझे आपसे जरूर ये टिप मिलेगी कि सर जैसे हम लोग खुद इतनी एबडेंटली सब रिसीव कर रहे हैं तो हम उनके लिए कैसे करें, क्योंकि एक मदर का दिल नहीं लगता कि डॉटर के लिए भी कुछ चाहिए, सन के लिए भी कुछ चाहिए, हस्बैंड के लिए भी कुछ चाहिए. हमें तो सब मिल रहा है. तो अभी आपको क्या चाहिए, मतलब व्हाट यू वांट, व्हाट इज द क्वेश्चन? टिप चाहिए कि हम जैसे अपने लिए सब एबडेंटली ले रहे हैं, जो भी मैम टिप्स दे रहे हैं, रोज आप दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस आप बता रहे हैं, तो जैसे आपको मिल रहा है. अब आपको चाहिए कि एज अ मदर आपको आपके बच्चे के लिए भी चाहिए, राइट? जैसे मैं उसके समझो बच्चों की स्टडीज के लिए, हस्बैंड के बिजनेस सक्सेस के लिए. ओके, देखिए जैसे जैसे आप ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहोगे, सुनिए, आपका जो पावर है ना वो बढ़ते रहेगा. हाँ जी. आप बिकॉज यू आर अ मैग्नेट, आप एक चुंबक है. अब वो मैग्नेटिक पावर, आप अच्छे काम करोगे, अच्छी सोचोगे, हैप्पी रहोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे, प्यार करोगे, प्यार से हर काम करोगे, तो होगा क्या, आपका जो मैग्नेटिक पावर है ना वो बढ़ते रहेगा. और जैसे ही वो मैग्नेटिक पावर बढ़ता रहेगा, वो आपके पूरे फैमिली को ऊपर लेके जाएगा. याद रखना ये बात, बहुत सिंपल है.
इसके लिए कहते हैं कि फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग। अब तो बहुत आगे जाना है अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जादू हो रहे। नाउ यू हैव टू एम्पावर योर वर्ड्स। एम्पावरिंग योर वर्ड्स कैसे होता है? जो हम बोलते हैं वो करते हैं। When you start doing that, आपकी जुबान में पावर आता है, पावर। जैसे जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं या कोई फंसाते नहीं, उनका पावर रहता है। दे बिकम पावरफुल बिकॉज दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी, एंड बाय दैट पॉजिटिव एनर्जी यू कैन, आप पूरे फैमिली का तो छोड़ो, आप पूरे समाज का, पूरे शहर का, पूरे देश का अच्छा कर सकते हो। जस्ट व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर मैग्नेटिक पावर, दैट्स इट। Right, sir. Got it. Thank you so much. So we have Pratik, please. और सागरिका, प्लीज अनम्यूट। यस प्रतीक। हेलो सर। मेरा सवाल ये है कि सर हमें कई बार हमें पता होता है कि हमारी एग्जैक्ट डिजायर क्या है। जैसे मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, बट कई बार हमें ये पता नहीं होता। जैसे मुझे जॉब चेंज करनी है, मुझे पता है कि सपोज मुझे XYZ कंपनी में जाना है, बट क्या वो मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, वो चीज की डिसीजंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? मतलब देखिए, आपको अगर देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ कैन आई इंप्रूव माय डिसीजन टेकिंग पावर? करेक्ट। अब मैं आपको बहुत एकदम स्ट्रेट बता, जैसे आप ग्रेटिट्यूड करोगे, ये सब करोगे तो आपका पावर बढ़ते रहेगा। अब सबसे मास्टर टेक्निक उसके लिए ये है, आपने मेडिटेशंस करना है। मैं आपको आज बता रहा हूं, मेडिटेशंस करने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है। सेकंड थिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड नोज ऑल द आंसर्स। मुझे ये नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे ये लड़की के साथ शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता है। Because your subconscious mind has the power to connect to the infinite intelligence. ये मैं आपको एक बुक नहीं, कम से कम 10-12 बुक पढ़ने के बाद में बता रहा हूं मैं ये बात, और ये मैंने खुद ने अनुभव करने के बाद में बता रहा हूं। But your mind will give you the answers when you do meditation, when you practice meditation. और दूसरा टेक्निक, अनदर टेक्निक, अब ये हो गया पार्ट 1। अब आपने क्या करना है, रात को सोने के टाइम पे, when you are in sleepy drowsy state, आपने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है, क्या ये मेरी XYZ कंपनी में जॉब करना मेरे लिए ठीक है या नहीं? कीप ऑन रिपीटिंग दिस, कीप ऑन रिपीटिंग दिस। आपको कभी ना, मतलब नेक्स्ट डे या कभी ना कभी ड्यूरिंग द डे आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा या हिंट मिल जाएगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा। ये करके देखना एक बार, और प्रैक्टिस करते रहना 2-3-4 बार, 4 days 5 days, कीप ऑन डूइंग इट। डिड एवरीबॉडी गेट द आंसर? अगर आपको किसी भी चीज का कंफ्यूजन है, रात को स्लीपी ड्राउजी स्टेट में अपने माइंड को एक क्वेश्चन पूछे, मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं, मेरी अंगूठी कहाँ गुम गई है। जैसे जैसे आपका माइंड का पावर बढ़ेगा, योर सबकॉन्शियस माइंड गिव्स यू इंट्यूशंस। इंट्यूशंस इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको एक ऐसा गट फीलिंग आता है ना, लेडीज को ज्यादा आता है, रिमेंबर दिस। आर यू गेटिंग दिस? लेडीज जो रहती हैं, उनकी ये जो पावर है ना, ये पावर बहुत स्ट्रांग रहता है। अगर कोई लड़का उनको गलत तरीके से हाथ लगावे, उनको समझ में आ जाता है कि इसने मतलब गलती से नहीं, गलत तरीके से, मतलब इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। डू ऑल द गर्ल्स एग्री विद दिस? इफ समबडी, कोई आपको टच करता है तो आपको पता चलता है कि इसने गलती से नहीं, मस्ती में किया है। बिकॉज गर्ल्स हैव द इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। So you will also get the answer during the day. Okay. So it is 9 p.m. and so let us start this session. Sir, just one question कि वो आपकी मैजिक बुक कब स्टार्ट हो रही है? 1st of September से। Okay, so let's clap and say to ourselves, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of the life. आज तो मजा आने वाला है, आज तो मजा आने वाला है।
थैंक यू वेरी मच। सो आज लिया आज हमारी क्लास लेने वाली है। लिया, मेक यू द co-host and today our special guest sharing is from Rajiv Gupta. Rajiv Gupta is a very good friend of mine and उसका हम शेयरिंग जो है 9:30 बजे लेंगे। स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करते हैं और बहुत बड़े बड़े मैजिक्स किए उन्होंने भी, तो उनकी शेयरिंग सुनेंगे उनकी जुबानी at 9:30। Over to you, Leah. Leah, you are the co-host. Thank you very much. Thank you, Rajan sir. So happy to see you on Monday. Okay. Thank you all beautiful participate. आप सभी लोगों का 66 days session 2 में स्वागत है। So अभी तक बहुत से लोगों ने शेयरिंग किया है, बहुत कुछ हमको राजन सर के थ्रू सीखने को मिला। बट नाउ थोड़ा सीरियस मोड में आ जाइए। और जितने भी लोगों ने अभी क्वेश्चन भी पूछे लेकिन वीडियो कैमरास ऑन थे, तो जिन जिन के जैसे मैं अभी फेसेस देख पा रही हूँ, शोभना जी, सपना जी, रूपल जी, ममता जी, राजीव जी, ताराचंद जी, तो एक कनेक्शन हो रहा है। अंशु जी, अदरवाइज आप लोग क्या कर रहे हो वी डोंट नो। आपका सीरियसनेस दिखना भी चाहिए कि आप यहाँ पे इस क्लास में किस लिए बैठे हो। सिर्फ सुनने बैठे हो तो रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पे, और अगर सीरियसली आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो प्लीज कम ऑन वीडियो मोड, ताकि आप लोगों की वो सीरियसनेस बनी रहे। थैंक यू सो मच जिसने भी अपने वीडियो कैमरास ऑन किए हैं, थैंक यू। हाँ जी, ओके, स्टिल लॉट्स ऑफ पीपल वाज देयर जिनके कैमरास ऑन नहीं है। ओ वाओ, सेकंड स्क्रीन पे सबके स्टार्ट हो गई। थैंक यू दीप्ति जी, ममता जी, अनीश जी, शैलेंद्र जी, ब्यूटीफुल। सो हेलो एवरीवन जी। अभी देखो ना कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ, सबकी फेसेस, सबकी स्माइल, सबकी एनर्जी, सबकी बॉडी लैंग्वेज, सबके थ्रू कितना कुछ समझ में आता है। मतलब हम लोग अभी इतने अंतर्यामी नहीं है कि ब्लैक स्क्रीन के साथ बात कर पाए। अगर ये आज का नहीं, ये हमेशा का ये सेट किया हुआ है कि आपको वीडियो कैमरा ऑन करके ही रखना है। चलो अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? सो मेरा वीडियो कैमरा होस्ट ने डिसेबल किया हुआ है। ओके, लेट मी ट्राई। Okay, now you can start your video. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. जी, अभी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो जस्ट मैं इस तरह से आपसे बात करती हूँ, ठीक है? अभी सोचो और फील करो कि कैसा लग रहा है आपको। कोई वो कनेक्शन फील हो रहा है? यस नो सभी चैट बॉक्स में बताइए। अगर मैं पूरा सेशन इसी तरह से कंडक्ट करूं तो आपको क्या लगेगा? मतलब कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, बराबर दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? पुष्पलता जी, राकेश जी, यस नो? दैट्स द डिफरेंस कि इस तरह से हमें भी लगता है। सेम फीलिंग मुझे भी। तो इज दैट गुड? खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ। इज दैट ओके कि ऐसे ही सेशन कंडक्ट करें? No, it's not. व्हाई बी डियर? I can see your face. I can see your language, body language, the So way you what? are. So what? It's Why? okay na? No, it's not. It's not na? Okay, then I am also human and I am also not okay कि जिन लोगों के कैमरास ऑफ है। So difference समझ में आ रहा है? Yes, no? तो इसी तरीके से आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, मैच्योर बच्चे हो, तो एवरीडे आप लोगों के साथ ये बात करना अच्छा नहीं लगता। सो बी सीरियस मोड। और यहाँ पे जो भी बातें हो रही है वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज, हर छोटी छोटी बात पता नहीं आपकी जिंदगी में कहाँ पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, या कौन सी बात चाहे आपकी जिंदगी की दिशा को बदल दे। तो ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सो थैंक यू सो मच ऑल वंडरफुल पार्टिसिपेट जिसने भी अपने कैमरास ऑन किए हैं। सो हम आज का कार्ड स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शेयरिंग सबका ऑलमोस्ट हो चुका है।
कोई ऐसा है जिसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पूछना है, आंसर नहीं मिला है, तो लास्ट क्वेश्चन आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। समवन? खुशी? यस खुशी, थैंक यू। यस Can I? यस Am I डियर। audible? Yeah. So I am a student, and my question was, the class is mostly about money and our mindset. So if I want to attract abundance in money area, how can I do that as a student? Neither do I have a job nor a business or nothing. I'm just a student. Then too, I'm willing to earn and get abundance of money in my life. Okay. So how is that possible for me? Very nice question, dear. Superb. So, आपकी जिंदगी में अभी वो स्टार्टिंग होना है मनी के लिए, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास बेस्ट टाइम है और आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप अभी से इस क्लास में हो। सो एक कहते हैं ना कि कोई भी बिल्डिंग जब बनती है ना तो नीचे एक नींव रहती है, एक फाउंडेशन रहता है। सो नाउ आपके पास टाइम है कि उस फाउंडेशन को इतना मजबूत कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, जो आप आने वाले अपने फ्यूचर में अप्लाई कर सको। और ग्रेटिट्यूड फॉर मनी और माइंडसेट फॉर मनी अभी से जब आपका कंफर्म हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो वो सारी चीजें गारंटेड आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी अगर आप अर्न नहीं भी कर रहे हो तो जो पॉकेट मनी आपको अपने मम्मी डैडू से मिल रही है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू गिफ्ट के रूप में आपको मिल रहा है, या जो भी स्पेंडिंग आप छोटी छोटी चीजों पे करते हो, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी के लिए या व्हाटएवर थिंग्स यू आर स्पेंडिंग ना, वो अबेंडेंस माइंडसेट का रखो। और जितना भी आपको मिल रहा है या जो भी आपके हाथ से आप स्पेंड कर रहे हो, तो उसमें से एक तो हो सकता है आप उसको स्पेंड करो और थोड़ा सा सेव करो। अगर 100 रुपीज आपको पॉकेट मनी मिल रहा है ना, तो एक माइंडसेट कैसा होता है बिजनेसमैन का कि 30% सेविंग में रख लेते हैं वो फॉर फ्यूचर। तो वो 30% को भी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। So you are also able to earn money, right? I have done that actually. Okay, that's great. तो मतलब उसको राजन सर हमारे वही सिखा रहे हैं कि उसको अलग अलग तरीके से, अभी तो आपके पास छोटा भी अमाउंट है ना, तो you are able to invest. Yes, I have invested. Yes. Okay, so start doing, not thinking. Just start doing. Okay. Already did. And I'm willing to do more of it. Yes, exactly. That's amazing. Thank you so much for this question. Thank you so much. Okay. और अपने पेरेंट्स के और उन सारे लोगों के जो भी मनी आप स्पेंड कर रहे हो ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड भी लिखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है। Yeah, got that. Thank you. Thank you, dear. मैम इस आपका आंसर के लिए रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछूं? जी जरूर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट, आपने जो प्रोसीजर बताया खुशी जी को, उसमें मैं रीजन जरूरी नहीं है व्हाई यू वांट अबंडेंस ऑफ मनी? उसने अभी सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए सोचा, अभी डिसीजन नहीं लिया है, बट आगे वो डेफिनेटली ले सकती है। बट अभी से उसका माइंडसेट तो है ना कि मुझे चाहिए। जब चाहिए आ गया ना, वो डिसीजन हो गया कि मुझे चाहिए, एक सपना आ गया, एक ड्रीम आ गया, एक विजन आ गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस में वो सारी चीजें भी हैपनिंग में होती जाएंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्यूटीफुल सेशन। कौन रीडर है हमारे साथ जो इंग्लिश और हिंदी में रीड करना चाहेंगे? प्लीज नॉमिनेट कीजिए अपने आप को, हैंड रेज कीजिए। जी सपना जी, आप हिंदी में करेंगे ट्रांसलेट? ओके। एंड अनीश जी आप इंग्लिश में, राइट? ओके, तो आप दोनों अपने आप को अनम्यूट रखिएगा और बाकी सारे लोग हमारे साथ साथ कार्ड को रीड करते जाइए, और स्पेशली ना सिर्फ रीड, फील भी करते जाइए। नंबर 30 ना, आई एम अ गिफ्ट, राइट? 31 ओके। कार्ड नंबर 31, आई एम फोकस। सो एक सेकंड के लिए सबको इस कार्ड को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है
कि उसमें क्या दिया गया है, ये जो पिक्चर दिया है, इसके कलर्स को और हर उस चीज को जो कार्ड का मेन इंटेंशन है, आई एम फोकस्ड। तो फोकस करो कि कार्ड हमको क्या कहना चाहता है। आपके माइंड में इसको लेके बहुत सारा, देखो अभी पिक्चर चल रहा होगा, टॉक्स चल रहे होंगे, व्हाट इज फोकस, किस तरह से, कैसे, क्या, किस लिए, समथिंग समथिंग समथिंग, लॉट्स ऑफ थिंग। तो जस्ट फोकस कि क्या कहना चाहता है। यस, आई एम फोकस्ड, मैं पूरे तरीके से एकाग्र हूं। जी अनीश जी, एक एक लाइन आपको पढ़ते जाना है एंड सपना जी आपको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते जाना है। जी। I am focused on achieving my goals through deliberate actions. I focus on wealth and it expands. जी सपना जी। मेरा पूरा ध्यान मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले कार्यों पर होता है। मैं धन को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करती हूँ और इसका बहुत विस्तार भी होता है और मैं उसको आकर्षित भी करती हूँ। Wow, that's really great. I am focused on achieving my goals through deliberate action. तो कोई भी चीज को पाने के लिए हम एक विजन बनाना पड़ता है और जब वो विजन सेट हो जाता है तो उस सेट विजन के लिए रिक्वायर्ड एक्शन हमको अप्लाई करने पड़ते हैं, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ सोचने से आपको विजन मिलेगा, लेकिन सोचने के बाद उसके ऊपर काम करने से, उसके ऊपर फोकस और कंसंट्रेट करने से फिर वो वेल्थ और एक्सपेंशन दोनों भी आपको मिलेगा, जो बढ़ता जाएगा धनी मन के एरिया में, धन के एरिया में। जी कंटिन्यू। सेकंड पॉइंट, I can achieve whatever I set my mind to. I walk with giants. I focus on progress. मैं जो भी मन में निश्चय कर लेती हूँ उसे पूरा करती हूँ और बड़े बड़े दिग्गजों, जो सफल व्यक्ति हैं, जो बड़े लोग हैं, और उनके साथ ही उठती बैठती हूँ। मेरा पूरा ध्यान मेरी उन्नति पर निरंतर रहता है। Yes, I can achieve whatever I set to my mind. I walk with the giants. I focus on progress. हर वक्त हर पल मैं हमेशा, मेरा माइंडसेट एक ही रहता है कि किस तरह से मुझे वो चीज पानी है, और उसी तरह के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है होता है, उस तरह के लेवल के साथ जो मेरे उस ड्रीम के साथ मैच करते हो, और मेरा फोकस पूरे तरीके से आगे जो भी प्रोसेस हो रहा है या जो प्रोग्रेस प्रगति हो रही है सिर्फ और सिर्फ उसी पे रहता है, ना कि फालतू चीजों पे। अमेजिंग। नेक्स्ट वन, I choose to focus on things that are pleasing to me. I am blessed with happy and loving relationship. मुझे जो पसंद है मेरा ध्यान वहीं जाता है। मैं अच्छी चीजों पर ही ध्यान केंद्रित करती हूँ और मैं मधुर भरे संबंधों से बहुत खुश हूँ। जी, I choose to focus on things that are pleasing to me. जो चीजें मुझे खुशी देती है या जो चीजें मुझे खुश रखती है, मैं सिर्फ उसी के ऊपर मेरा फोकस है। बाकी दुनिया भर में इतना सारा पड़ा है, लेकिन what you want only उसी पे आपका फोकस रहना चाहिए। I am blessed with a happy and loving relationship. अब मुझे क्या चाहिए? तो blessed और happy relationship, तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे, ना कि किसी और पे। सो मैं हर रोज अपने साथ ये करती हूँ। नेक्स्ट, When I declutter my life, my focus gets better and better. I focus on growth and progress. मैं जब मेरे माइंड से अनचाही चीजों को निकाल देती हूँ और पूरी तरह से खाली कर देती हूँ, तो मैं पूरी तरह एकाग्र हो जाती हूँ और मेरा ध्यान भी बहुत अच्छा होने लगता है और मुझे डे बाय डे बहुत अच्छा लगता है। जी, एवरी डे अपने आप को चैलेंज करना है, एवरी डे अपने आप का बेहतर वर्जन बनाते जाना है। जो अपग्रेडेड वर्जन होता है ना,
मोबाइल में हमारे हर रोज आता है कि नहीं, हर 7 डेज 10 डेज 15 डेज के बाद अब आप अपना ये ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, री इंस्टॉल कर लीजिए, अपडेटेड वर्जन को आप डाल दीजिए। उसी तरीके से अपने आप को भी हर रोज आपको अपडेट करना है, जो कुछ भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। तो डे बाय डे वो आपको आगे की तरफ लेके जाए। जी I choose to focus on my life solution. I focus on love and gratitude. I focus on eternal youth. जी मेरा ध्यान हमेशा मेरे जीवन के समाधानों पर होता है। मेरा पूरा ध्यान प्यार और जीवन की खुशियों को प्राप्त करने में होता है और हमेशा उधर ही लगा रहता है। मैं हमेशा कृतज्ञता को बढ़ाने में ही फोकस करती हूँ, ध्यान केंद्रित करती हूँ। जी तो इस तरीके से आई एम ग्रेटफुल इन ऑल सिचुएशन। जिंदगी में जो भी चुनौतियां आती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी अप्स आते हैं, जो भी डाउन्स आते हैं, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है और हर चीज मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है और हर बार ये यूनिवर्स मेरे साथ है। आई एम सो मच ग्रेटफुल कि वो मुझे हमेशा सोल्यूशन देती है, हर बार सोल्यूशन देती है। तो आई अप्रिशिएट एंड आई कॉम्प्लीमेंट पीपल। आई फोकस ऑन ओनली एंड ओनली हैप्पीनेस। तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियों की तरफ ही रहता है। जब आपका माइंडसेट ऐसा होगा तो आपका फोकस भी उसी तरफ रहेगा। जी कंटिन्यू। When I focus on something, it expands. I focus on what I want, and I focus on the perfect health. मैं जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करती हूँ वो चीज मेरे जीवन में बढ़ती ही जाती है। मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर होता है जो मैं जीवन से चाहती हूँ और पूरा ध्यान मेरे संपूर्ण स्वास्थ्य पर होता है ताकि मैं स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त रहूं। मुझे कल से भी आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। वाओ। when I focus on something, it expands, मतलब बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जहां पे भी आपका फोकस रहेगा वो चीज आपको ज्यादा विजिबल दिखाई देगी, ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। एक रूल है, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जैसे अनीश जी ने अभी देखो एक म्यूजिकल टोन में जो लाइन पढ़ी ना, उसको लेके आप लोगों ने कैसा, मतलब सबके चेहरे पे स्माइल आ गई, सडनली शिफ्ट हो गया ना माइंड और कुछ अलग तरह से साउंड सुनाई दिया। तो फोकस कहाँ गया, वो अलग तरह की साउंड और वेव्स पे। तो जो कुछ भी आप सुनते हो उसका अपना एक एनर्जी रहता है। तो जब आप उसके ऊपर फोकस करते हो, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करते हो, तो वो बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई देने लगता है और बड़ा होने लगता है। अगर आप अभी देखो अपने आसपास रेड कलर रेड कलर रेड कलर, अभी देखो सराउंडिंग अपने आसपास, आपको रेड कलर एकदम ब्राइट विजिबल दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा। तो इसी तरीके से ये रूल काम करता है। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट, आई फोकस ऑन परफेक्ट हेल्थ। मुझे जो चाहिए मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पे है और मेरी परफेक्ट हेल्थ में आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ आती है, आपकी मेंटल हेल्थ आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ आती है और हर तरह की हेल्थ, मतलब एकदम परफेक्ट हेल्थ जो आपको चाहिए। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उधर रहना चाहिए। सो थैंक यू फॉर अमेजिंग। एक और था, आई एम ग्रेटफुल, और ये वाला एक मेरे कार्ड में एक और था। यस, Can I read it out? Yes. I am grateful in all the situations. I appreciate and compliment people. I focus on happiness. Yes, मैं continue. हर परिस्थितियों में हमेशा कृतज्ञ रहती हूँ। मैं हर वक्त सबकी प्रशंसा और सराहना करती हूँ और हमेशा मेरा ध्यान खुशियों पर ही जाता है और मैं सारी इच्छाएं पूरी भी कर रही हूँ। वाह, थैंक यू। Thank you so much for beautiful reading, Anish ji and Sapna ji. Thank so you so next card है I am safe, right? So next reader कौन है हमारे साथ? मोनिका जी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट योरसेल्फ। हिंदी में, इंग्लिश में? इंग्लिश। एंड वन मोर पर्सन, ताराचंद जी, हिंदी ट्रांसलेट। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई एम सेफ।
तो यहाँ पे जो पिक्चर हमको दिखाई दे रहा है, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड फील द पिक्चर। सबसे ज्यादा इस दुनिया में एक रिश्ता है जिसके साथ हमको सेफ्टी फील होती है जैसे ही हम इस अर्थ पे आते हैं। और वो सबसे पहला रिश्ता, मतलब इस दुनिया में आने से पहले 9 महीने तक भी आपके साथ जब जन्म नहीं होता तभी से वो रिश्ता जुड़ जाता है। और वो जो हग का एहसास होता है, वो जो सेफ्टी का एहसास होता है, वो लव का एहसास होता है, वो हर मतलब भगवान मेरे साथ है वैसा एहसास होता है हमको। तो ये पिक्चर वो रिप्रेजेंट करती है दैट आई एम सेफ इन मदर्स हग, उसकी बाहों में सबसे ज्यादा। यस नो, फील द वाइब्स एंड फील द वर्ड्स, आई एम सेफ। हर तरह से मैं सुरक्षित हूँ, हर जगह मैं सुरक्षित हूँ। ये ग्रेटिट्यूड का जो शील्ड, जो ये रक्षा कवच मैंने ओढ़ा हुआ है, इसको डे बाय डे प्रोटेक्शन शील्ड मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं हर तरह से एकदम मस्त सेफ चल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, सो रीड। I am protected. I am a child of God. I am safe. I feel safe and secure. मैं सुरक्षित हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित और सिक्योर महसूस करता हूँ। यस, आई एम प्रोटेक्टेड, मैं पूरे तरीके से सुरक्षित महसूस करती हूँ। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं उस परमात्मा, उस यूनिवर्स, उस परम शक्ति की संतान हूँ, उसका प्यारा बच्चा हूँ। हर तरह से मुझे वो सुरक्षा प्रोवाइड कराती है और मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा और खुश और सुरक्षित महसूस करता हूँ उनके साथ। जी। I am at peace with who I am as a person. I stay calm in stressful situations. मैं बहुत शांत हूँ, जिस तरह का मैं व्यक्ति हूँ। I stay calm in स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हाँ, मैं किसी भी कठिनाई के समय में भी अपने आप को शांत रखता हूँ और मेरे सक्सेस होने का सिर्फ यही कारण है। यस, आई एम एट पीस विद हु आई एम एज अ पर्सन। मैं जो शांति के साथ हूँ और मैं जिस इंसान के साथ मतलब अपने साथ बहुत ही ज्यादा क्लेम और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी मैं एकदम मेरी उस शांति को बरकरार रख सकता हूँ, मैं उस तरह का बंदा हूँ। तो ये बातें आपको हर रोज अपने आप से कहनी चाहिए। हम लोग कई बार इसका अपार्ट करते हैं, इसका दूसरा तरह का, अरे मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, मुझे तो ये बहुत होता है, मुझे तो वो बहुत होता है। तो वो जब आप बोलते हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है विद दिस लाइन दैट आई एम ऑलवेज एनी सिचुएशन, किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी मैं पीसफुल रहता हूँ हमेशा, और मैं उसी तरह का इंसान हूँ। डिक्लेयर कर दो यूनिवर्स को, राइट? जी, कंटिन्यू। My parents are my best friends. All my relationships are harmonious. वाह, मेरे माता पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरे सारे जो परिवार के अन्य लोग हैं वो मेरे मार्गदर्शन हैं। जी, माई पेरेंट्स आर माई बेस्ट फ्रेंड। सबसे अच्छा मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, उनके साथ सारे तरह की चिट चैट कर सकते हो, हर तरह की बातें कर सकते हो, अपनी जिंदगी को शेयर कर सकते हो, और हर कितना कंफर्ट और कितना आजादी महसूस होता है ना दोस्तों के साथ। एक बूस्ट मिल जाता है, एक एनर्जी मिल जाती है अगर 2 मिनट भी बात हो जाए तो उस तरह का रिलेशनशिप आपके माता पिता के साथ भी आपका होना चाहिए। और जब ये लाइनें आप बोलते हो ना तो धीरे धीरे, अगर नहीं भी है तो वैसा होना स्टार्ट हो जाता है। माई ऑल रिलेशनशिप, जिनके भी साथ मेरा रिश्ता है उनके सबके साथ वो हार्मोनियस और लवेबल रिलेशनशिप है, सेम दोस्तों के जैसे। जी। Everything is working for my highest good. In this situation, only good will come to me. मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सर्वोत्तम से सर्वोत्तम हो रहा है और मेरे पास जो भी आएगा हर हालत में, हर सिचुएशन में मेरे पास सिर्फ गुड आएगा और कुछ भी नहीं आएगा।
जी, बिकॉज ऑफ आपके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखा है, तो जो कुछ भी आता है ना सबसे पहले उस ग्रेटिट्यूड की प्रोटेक्शन शील्ड पे टकराता है, और वहीं पे टकरा के वो पूरा नेगेटिव एनर्जी तो गिर जाता है या एकदम धुएं के जैसे गायब हो जाता है। तो वो सबसे एकदम क्या कहते हैं उसको, छन के आपकी तरफ आता है हर चीज। उसको इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं, फिल्टर्ड होके आता है, फिल्ट्रेशन के बाद। तो आपके पास क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा, सबसे बेस्ट जो परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है, सिर्फ वही आप तक पहुंचता है। सो थैंक यू फॉर दिस, वाओ, ब्यूटीफुल लाइफ। नेक्स्ट वन। I am divinely protected at all times. I do good deeds. I attract good deeds. मैं हर वक्त देविक रूप से सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सब सुरक्षित है, और हर किसी में मुझे प्रॉफिट आ रहा है, हर जगह से प्रॉफिट आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, मैं उस ईश्वरीय शक्ति, उस पावरफुल यूनिवर्सल शक्ति के द्वारा पूरे तरीके से सुरक्षित हूँ, हर टाइम, हर वक्त, हर पल। आई डू गुड डीड्स, मैं अच्छे कर्म करता हूँ, और ये मेरा धर्म भी है और कर्म भी है। आई अट्रैक्ट ऑलवेज गुड थिंग्स, मतलब हर वक्त में अच्छी चीजें और उस सेम सिचुएशन में रहता हूँ। अमेजिंग। I am so happy and grateful now that all my investments are safe and profitable. ये तो हो गया ना? आपने इसकी हिंदी कर दी थी पहले, ये अभी मैंने पढ़ा। Okay. I am so happy and grateful. This one, na? I am so happy and grateful now that all my investment are safe and profitable. जहां पे भी मैंने इन्वेस्ट किया है या जो भी मेरा सेविंग मनी है वो पूरे तरीके से सुरक्षित है, हमेशा मेरे साथ जब भी मुझे जरूरत पड़े, और डे बाय डे वो प्रगति में और उन्नति में बढ़ता जा रहा है। उसमें भी मुझे जो पैसिव इनकम बोलते हैं ना, वो हर तरफ से बारिश हो रही है, उसकी प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट। I am safe in all relationships. I give and receive lots of love. I trust the process of life. मैं अपने हर रिश्तों में बहुत सुरक्षित हूँ। मेरे रिलेशन जितने भी हैं वो सब सुरक्षित है। मुझे चारों तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है, और मैं जो लाइफ का जो ये प्रोसेस है उससे बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सेफ इन ऑल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा शिप है जिसके ऊपर से हमको कहा ना कि ये सागर, जो भव सागर बोलते हैं ना, जिंदगी की नौका को उस सागर से लेके जाना, तो रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बहुत ही हेल्दी और हैप्पी वे में। आई गिव एंड रिसीव लॉट्स ऑफ लव। तो सबको क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए ना रिलेशनशिप से, कि हमको बहुत सारा प्यार मिले, हमको बहुत सारा अप्रिशिएशन मिले, हमको हर तरफ से सम्मान मिले, और हर चीज हमको चाहिए 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 चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, लॉट्स ऑफ ब्ला 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 ब्ला। बस सबका माइंडसेट क्या होता है, चाहिए 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 चाहिए। बट रुक जाओ, यूनिवर्सल रूल क्या है कि कुछ भी अगर आपको चाहिए ना, तो थंब रूल बोलते हैं इसको, गिव एंड रिसीव। सबसे पहले जो भी चाहिए उसको देना स्टार्ट करो, तभी आपको मिलना स्टार्ट होगा। और हम लोग कौन सा कंडीशन अप्लाई पहले करते हैं, जस्ट थिंक, नॉक नॉक एवरीवन, क्या अप्लाई करते हैं, पहले सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा ना, तो क्या आया बीच में, रिसीव। यस एग्जैक्टली। ईगो आपका बोलते हैं ना बहुत बड़ा जो हो चुका है अब तक, उसको बहुत फीड किया है आपने, इसलिए मस्त हष्ट पुष्ट एकदम मोटा ताजा होके आपके साथ बैठा है। लेकिन ये रूल्स जो यूनिवर्सल है कि जो कुछ भी आपको चाहिए अच्छा, बहुत प्यारा, लवेबल, तो उसके लिए सबसे पहली शुरुआत आपको अपने आप से करनी है, देने की। और जितना आप दोगे उतना ही उससे डबल और ट्रिपल क्वांटिटी में आपको मिलना स्टार्ट होगा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ताराचंद जी। एंड क्या नाम था आपका?
Monica. मोनिका जी, ना मोनिका, थैंक यू अनीश। फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच। सो हमारे दोनों कार्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और टाइम भी हो चुका है। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।